नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर मचे घमासान और वोट चोरी के आरोपों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2023 के उस संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया गया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके और इलेक्शन कमिश्नर्स इनकी इन दोनों पदों को उनके आधिकारिक पद पर रहते हुए कानूनी सुरक्षा मिली है। इस जो 2023 का जो कानून है उसके हिसाब से लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने अपनी याचिका के जरिए चुनाव अधिकारियों को मुकदमे से बचाने की वैधता पर सवाल उठाया है और इसे गलत बताया है। आपको बता दूं कि यह पहली बार नहीं है जब इस कानून को लेकर सवाल उठाए गए हों। अभी पिछले महीने 9 दिसंबर को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि अगर केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनती है तो वो उस कानून को बदल देगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान करता है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, पहले उनकी बाइट सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये पिछले महीने यानी दिसंबर का महीना और विंटर सेशन चल रहा था। विपक्ष चाह रहा था कि चुनाव सुधार पे और खासकर जो एसआईआर है उस पे चर्चा हो। एसआईआर का नाम न देकर चुनाव सुधार का नाम दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई, बहस हुई और इसी बहस के दौरान राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में साफ साफ जो बातें कही थी, आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। इंग्लिश में उन्होंने पूरे भाषण को दिया था और उसके बाद आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा था और आज उस कथन की जरूरत यहां सुनने की क्यों पड़ रही है, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। सुनिए जरा। They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions and there is clear proof which I have put in front of the country, right? But the election commission has no answer to these questions, and that is the result of the complete capture of the election commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is, it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now let us come to how, when we are talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Yes. Let our experts go and see what is inside the EVM. Yes. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do.
That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the तो सुन लिया आपने, वी आर गोइंग टू चेंज इट रेट्रोएक्टिवली। और यहां पर यानी मैं निर्वाचन आयुक्तों यानी चुनाव आयुक्तों से कहना चाहता हूं कि वो सोचते होंगे कि ये कानून उन्हें बचाता है, लेकिन चिंता ना करें, हम सत्ता में आने पर कानून बदलेंगे और वो भी पिछली तारीख से रेट्रोएक्टिवली ऐसा करेंगे और आपको ढूंढ निकालेंगे। ये बात यहां राहुल गांधी ने कही। जो भी आप सुन रहे थे वहां राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर अपनी तमाम बातें रखी, इंग्लिश में कह रहे थे, आप लगातार सुन रहे थे, समझ रहे थे। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जिस कानून को बदलने की बात की थी और अभी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023। ये 2023 का एक एक्ट है, अधिनियम है, जो अब कानून का रूप ले चुका है। और उस कानून का नाम दोबारा आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आगे इसका जिक्र अभी आएगा, इसलिए कह रहा हूं। और जिस कानून का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे उसी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023। यह कानून पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा से पारित होने के बाद 29 दिसंबर, जी हां 29 दिसंबर 2023, 29 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू हुआ था इस देश में। इसने चुनाव आयोग, जिसमें चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 की जगह ली थी। 1991 में जो कानून था उस कानून को खत्म कर हटाकर और यह नया कानून लाया गया और चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें क्या होंगी, उनका कार्य संचालन कैसे होगा, उसकी जगह ली थी। और याद कीजिए, यह वो समय था जब लगभग 150 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर कर दिया गया था और इस कानून को पारित किया गया था। इस कानून की धारा 16 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान की गई है। इसके मुताबिक वर्तमान या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों यानी इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अभी ज्ञानेश बाबू हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, और चुनाव आयुक्तों यानी इलेक्शन कमिश्नर जो दो उनके आजू बाजू में बैठे रहते हैं, इन दोनों द्वारा अपनी सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी कार्य या वक्तव्य के लिए किसी भी अदालत में दीवानी या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस नियम के पीछे यह तर्क दिया गया था कि इससे चुनाव आयुक्त बिना किसी डर या पक्षपात के अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे। बहुत बढ़िया। कानून में तो बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं दोस्तों, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं दिख रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम कर पा रहा है, बल्कि चारों तरफ से पक्षपात की खबरें आ रही हैं। एसआईआर में अमर्त्य सेन, भारत रत्न अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश जैसों को चुनाव आयोग में पेश होने का नोटिस भेजा जा रहा है। आज उधर पश्चिम बंगाल में जादवपुर विश्वविद्यालय, आप जानते हैं, जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति चिरंजीव भट्टाचार्य को भी ऐसा ही नोटिस चला गया है। ऐसी गलतियां, और ये गलतियां हो रही हैं या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, इस पर बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। आज तो एक अखबार ने उत्तर प्रदेश के एसआईआर में नाम और पतों की गड़बड़ी पर खबर छापी है, जिसे शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ लिखा है उसको आपके सामने ला रहा हूं। संजय सिंह यहां कह रहे हैं, मोदी, योगी, ज्ञानेश, इन तीनों का नाम लेते हुए, मोदी, योगी, ज्ञानेश ने यूपी के साथ कर दिया बड़ा खेल। एसआईआर के नाम पर 4 करोड़ 46 लाख मतदाता उड़ा दिए। 4 करोड़ 46 लाख, 4 करोड़ एंड 46 लाख वोटर्स उड़ा दिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी ग्रामीण दोनों की सूची 17 करोड़ 1 लाख मतदाता दर्ज किए।
दोनों की सूची अगर शहरी और ग्रामीण का देखा जाए तो, जबकि मोदी योगी गणेश ने एसआईआर के बाद इसको घटाकर कुल मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 55 लाख कर दी। कौन सच है और कौन झूठ? यह है एसआईआर का काला सच। एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम कई बूथों पर दर्ज, एक ही पते पर मिले कई परिवारों के नाम। शर्मा के घर शबनम का नाम कैसे? शर्मा के घर शबनम और पंडित के घर खान तो भारतीय एकता की मिसाल बन सकती है, लेकिन असल में यह चुनाव आयोग की गड़बड़ी की मिसाल है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग अपनी गलती नहीं मानेगा। ये अखबार में, ये अमर उजाला अखबार ने इसको छापा है, एसआईआर शर्मा के घर शबनम, इसी हेडिंग के साथ। देखिए, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कहां? तो उत्तर प्रदेश में। शर्मा के घर शबनम, एक ही पते पर मिले कई परिवारों के नाम, एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम कई बूथों पर। यह यहां साफ साफ। इधर पश्चिम बंगाल आते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भी अब इसी बात की लड़ाई है कि गलत कौन है। ईडी ने आईपैक, आप जानते हैं, आईपैक के दफ्तर पर प्रतीक जैन जो इसके आज की तारीख में कर्ता धर्ता हैं, दोनों के घर, प्रतीक जैन के घर पर और आईपैक के दफ्तर पर रेड की थी। तो ममता बनर्जी ने भी प्रतीक जैन के घर पहुंचकर कुछ जरूरी दस्तावेज उठा लिए थे। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और टीएमसी की मुखिया, उनका आरोप था कि ईडी के जरिए बीजेपी उनकी रणनीति चुरा रही है, चुनावी रणनीति चुरा रही है। और लेकिन अब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय कह लीजिए, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और पुलिस के आला अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दरखास्त दी है। लेकिन जब यह लेकर निकली थी, ममता बनर्जी ने क्या कहा था? एक छोटी सी बाइट सुन लीजिए पहले, फिर इधर क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे हम। तो यहां ममता बनर्जी जब जो हरे रंग के इस फाइल को लेकर निकली, इस फाइल के अलावा इनके पास एक हार्ड डिस्क भी है, इसको लेकर निकली थी, तो इन्होंने जो अपनी बातें रखी थी, जो चुनौती पेश की थी, वो सब कुछ अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन साथ साथ इसके बाद अब ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी पहुंच गई वहां कोलकाता हाईकोर्ट में। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन जिस दिन सुनवाई होनी थी 12 तारीख को, 12 तो आज है, लेकिन सुनवाई 9 तारीख को शायद थी या 10 तारीख को, 9 को थी या 8 को थी सुनवाई। उस दिन जिस दिन सुनवाई थी, उस दिन वहां, पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए यहां क्या बोल रही है ममता बनर्जी। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal. यहां ममता बनर्जी का आरोप था कि ईडी के जरिए बीजेपी उनकी रणनीति यानी सियासी रणनीति को चुरा रही है। लेकिन अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और पुलिस के आला अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी है। ईडी का कहना है कि रेड सिर्फ अपराध के जांच पड़ताल के लिए की गई थी, न कि किसी राजनीतिक दल को किसी गतिविधि से संबंधित थी। ये कि वो कौन सी रणनीति बना रही है, कौन सी गतिविधि यहां पर लेके आने वाली है चुनाव में। ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून अपने हाथ में लेने का एक पैटर्न बना लिया है और जब भी किसी जांच में उन्हें उनके मंत्रियों, पार्टी कार्यकर्ताओं या उनसे जुड़े अफसरों के खिलाफ कुछ सबूत मिलने की संभावना होती है, तब वे राज्य की पुलिस का दुरुपयोग करती हैं। ईडी ने जो याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका में क्या कहा है अब आपके सामने रख रहा हूं। याचिका में ईडी ने कहा है कि इन लोगों ने जांच एजेंसी के अफसरों को डराया, धमकाया और उनसे ऐसी फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक सबूत छीन लिए जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम आपराधिक सबूत थे। ईडी ने यहां कहा है कि हमने जो सबूत जुटाए थे उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था और वे पूरी तरह से जांच के मामले से संबंधित अपराध तक ही सीमित थे।
ईडी ने यहां यह भी कहा है कि जब जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों को मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त ने छीन लिया और इसे मीडिया के सामने तमाशा बना दिया, तो इससे संविधान और कानून के शासन का अपमान हुआ, जिससे संवैधानिक सिद्धांतों को नुकसान हुआ, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा रक्षा की है। ईडी ने यह भी कहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं, वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और अन्य पुलिस अफसर गंभीर अपराधों के में शामिल हैं। ये जितने भी हैं सब गंभीर अपराधों में शामिल हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करना बेकार ही होगा, क्योंकि स्थानीय पुलिस सही ढंग से जांच नहीं करेगी और मुख्यमंत्री और सीनियर पुलिस अफसरों को बचाने के लिए लापरवाह ढंग से जांच करेगी। यह बात यहां ईडी ने कही है, यानी हमको अब कहीं और एफआईआर, दिल्ली में या कहीं और एफआईआर कराने की अनुमति दी जाए, यह सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। इस दलील से साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि ईडी खुद को पूरी तरह बेचारा दिखा रही है कि ममता बनर्जी ने उसके साथ बड़ा अन्याय किया है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी की तरफ से पहले ही कैबिनेट दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करने का आदेश देता है। लेकिन इससे इतना साफ है कि फैसला जो भी आए, बीजेपी तकलीफ में रहेगी। अगर ममता बनर्जी पर कार्रवाई होती है तो वो इसे चुनाव में भुना सकती हैं, और अगर नहीं होती है तो फिर ये ईडी यानी बीजेपी की बड़ी हार होगी। यहां दोनों तरफ से बीजेपी फंसी हुई है और इन सबके बीच खबर यही है कि आज इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को और ममता बनर्जी को और इधर केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को नोटिस भेज दिया है। अब आगे नोटिस का जवाब आएगा, इस पर सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि 19 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि अब मोदी और बीजेपी के हाथों से बाजी निकलती जा रही है। क्या कभी डमरू बजाकर तो कभी पतंग उड़ाकर। जी हां, आज नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाने में साथ ले रहे थे, उनका साथ दे नहीं रहे थे, बल्कि वो साथ ले रहे थे जर्मन चांसलर का। ये तस्वीर देख लीजिए, चलते चलते मतलब आगे की कार्रवाई जो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे उससे पहले जरा पतंगबाजी भी देख लीजिए। कल डमरू बजा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, आज पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं और साथ में खड़े हैं जर्मन चांसलर। जगह है अहमदाबाद।